بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے ہم متول کے 8ویں سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے علم بلاغت کی عظمت اور اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم البلاغت ہوا علم المعانی والبیان وعلم توابعها هو البدیع من اجل العلوم قدرا وادقها سرا۔ علم بلاغت یعنی علم معانی اور بیان اور اس کے توابع کا علم یعنی بدیع مرتبہ کے اعتبار سے اجل العلوم سے ہے یا اجل علوم میں سے ہے، وادقها سرا اور نکتہ کے اعتبار سے دقیق ترین علوم میں سے ہے۔ لا حاجت الی تخصیص العلوم بالعربیہ، علوم کو عربیت کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی خاص حاجت نہیں ہے۔ لأنہ لم یجعلہ اجل جمیع العلوم بل جعل طائفة من العلوم اجل مما سواها، کیونکہ ماتن نے علم بلاغت کو جمیع علوم سے اجل نہیں بنایا۔ لأنہ لم یجعلہ اجل جمیع العلوم، ماتن نے علم بلاغت کو جمیع علوم سے اجل نہیں بنایا، بل جعل طائفة من العلوم اجل مما سواها، بلکہ علوم میں سے ایک ٹکڑا بنایا ہے جو کہ ما سوا سے اجل ہے۔ وَجَعَلَهُ مِنْ هَذِهِ الطَّائِفَةِ مَعَ أَنَّ هَذَا ادِّعَاءٌ مِّنْهُ، باوجود اس کے کہ ماتن کی طرف سے ایک دعویٰ ہے۔ وَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور ہر گروہ اپنے پاس موجود شے سے ہی خوش ہوتا ہے۔ أي بِعِلْمِ الْبَلَاغَةِ وَتَوَابِعِهَا لَا بِغَيْرِهَا مِنَ الْعُلُومِ يُعْرَفُ دَقَائِقُ الْعَرَبِيَّةِ وَأَسْرَارُهَا فَيَكُونُ مِنْ أَدَقِّ الْعُلُومِ سِرًّا، اس لیے کہ اس کے ذریعے یعنی علوم بلاغت اور اس کے توابع کے ذریعے، لا بغیرہ نہ کہ اس کے علاوہ دیگر علوم کے ذریعے، یعرف دقائق العربیہ عربی زبان کے دقائق یعنی باریکیاں پہچانی جاتی ہیں، واسرارها اور علم بلاغت اور اس کے توابع کے ذریعے نکتہ کے اعتبار سے، یعرف دقائق العربیہ واسرارها عربی زبان کی باریکیاں اور اس کے نکتے پہچانے جاتے ہیں، فیکون من ادق العلوم سرا، سو یہ علم یہ فن نکتہ کے اعتبار سے علوم میں سب سے زیادہ دقیق ہوگا۔ علم البلاغت ہوا علم المعانی والبیان وعلم توابعها هو البدیع من، علم بلاغت اور علم توابع یہ دو علم ہیں، تو ان کی طرف عائد ہونے والی ضمیر بھی تثنیہ کی ہونی چاہیے تھی، جبکہ عبارت میں اس بھی مفرد کی واحد کی ضمیر ذکر کی گئی ہے، تثنیہ کی ضمیر کیوں ذکر نہیں کی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی چیز کا دوسری چیز پر عطف ہوتا ہے تو معطوف علیہ سے ما قبل والی عبارت جو معطوف کے ساتھ ملتی ہے، تو توابعها کا عطف ہے البلاغہ پر، تو بلاغت سے ما قبل لفظ علم توابع کے ساتھ لگے گا، تو چونکہ توابع کے ساتھ لگنے والا لفظ علم وہی ہے جو البلاغہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو علم بلاغت اور علم توابع بلاغت میں یعنی علم میں متحد ہیں، تو اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر بھی واحد کی ہی بنتی ہے۔ لا حاجت الی تخصیص سے غرض شارح علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ نے یہ فرمایا کہ علم بلاغت اور علم توابع جمیع علوم سے اجل ہے اور یہ جمیع علوم سے ادق ہے، حالانکہ علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ یہ دیگر علوم وغیرہ علم بلاغت سے اجل ہیں، علم بلاغت ان سے اجل نہیں ہے۔ تو مصنف علیہ رحمہ کا یہ کہنا کہ علم بلاغت تمام علوم سے اجل ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو اس اعتراض کا ایک جواب بعض لوگوں کی طرف سے دیا گیا تھا۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے ان بعض افراد کی طرف سے دیا گیا جواب ذکر کریں گے کہ اجل العلوم پر جو العلوم پر الف لام ہے وہ عہد خارجی ہے، اس سے مراد علوم عربیہ یعنی صرف و نحو وغیرہ۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ علوم ادبیہ اجل ہیں تمام علوم عربیہ سے، کیونکہ علوم عربیہ کی صحیح معرفت تب ہی ہوتی ہے جب علوم ادبیہ یعنی بلاغت، بیان، بدیع وغیرہ کی معرفت ہوگی، تو اس وجہ سے علم بلاغت تمام علوم عربیہ سے اجل ہے۔ من اجل العلوم سے غرض مصنف علم بلاغت کی عظمت اور قدر و منزلت بیان کر رہے ہیں، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعویٰ کر کے اسے دلیل سے بھی ثابت کیا ہے۔ پہلا دعویٰ یہ ہے کہ علم بلاغت مرتبہ کے اعتبار سے اجل العلوم ہے، اجل العلوم میں سے ہے۔ دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ علم بلاغت راز و اسرار کے اعتبار سے ادق علوم میں سے ہے۔ لا حاجت الی تخصیص سے
शारिर रहमतुल्लाह ताला अलैह की गर्ज उस जवाब को रद्द करके फिर अपनी तरफ से उस एतराज का जवाब दे रहे हैं। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह रद्द करते हैं कि उलूम को अरबिया के साथ खास करने की जरूरत नहीं है। तो इस मसले को हल करने के लिए दो हल हैं। एक हल तो यह है कि पहली सूरत में एतराज वारिद ही नहीं होगा और दूसरी सूरत में एतराज का बेहतर तरीके से जवाब भी आ जाएगा। मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि मिन अजल्लिल उलूमी, इस इबारत के अंदर जो लफ्ज मिन है हरफ जार, ये तबईदिया है, तबईदिया। तो मतलब ये होगा कि अजल उलूम एक ताइफा है, एक गिरोह है जिसके बहुत से अफराद हैं और इनमें बलागत भी इस ताइफा का एक फर्द है। जैसे कोई कहता है कि ज़ैद मिन अफज़ल रिजाल, ज़ैद मर्दों में से अफजल है या ज़ैद अफजल मर्दों में से है। इस इबारत का ये मतलब नहीं कि ज़ैद तमाम रिजाल से अफजल है, बल्कि मतलब यह है कि रिजाल में जो अफजल लोग हैं ज़ैद भी उन्हीं में से एक फर्द है, यानी अफजल है। इस तरह मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने यह फरमाया कि इल्म बलागत भी अजल उलूम के ताइफा में से एक इल्म है। तो इस सूरत में एतराज वारिद ही नहीं होगा और ना ही जवाब की जरूरत पड़ेगी। और आयत कुरानी को पेश करके वकुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून से इस बात को वाज़ेह किया जा रहा है कि हर इंसान किसी शय की तारीफ में मुबालगा से काम लेता है, जिससे इंसान को रग़बत होती है, लगाव होता है। जब इंसान उसकी तारीफ करेगा तो मुबालगा से काम लेगा, क्योंकि वो उसकी नज़र में कदर मर्तबा वाली है। और इसी इंसानी तबीयत की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, कि हर जमात उसी शय पर खुश है, उसी पर खुश है जो उसके पास मौजूद है, यानी अपनी मरगूब और पसंदीदा चीज उसे खुश करती है। तो मुसन्निफ अलैहिर्रहमा को भी इल्म बलागत से बड़ा ही लगाव था, इसलिए इस फन की अहमियत को वाज़ेह करने और उसकी कदर व मंज़िलत को जाहिर करने में मुबालगा से काम लेते हुए ये फरमाया है कि ये इल्म तमाम उलूम से अजल है। मिनल उलूम से शारिर रहमतुल्लाह ताला अलैह एक एतराज का जवाब फरमा रहे हैं कि आपने कहा कि दकाइक अरबिया सिर्फ और सिर्फ इसी इल्म से मालूम होते हैं, गैर से मालूम नहीं होते। तो ये बात आपने बतौर हसर जिक्र की है और आपका हसर करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि दकाइक अरबिया इसके गैर से भी मालूम होते हैं, क्योंकि अहले अरब अपने ज़ौक़ और तबीयत से भी दकाइक अरबिया मालूम कर लेते हैं। तो उसका जवाब दिया कि मिनल उलूम कह के कि हमारा हसर करना बिल्कुल दुरुस्त और ठीक है। हमारी मुराद यह है कि उलूम में से दकाइक अरबिया की मारिफत सिर्फ और सिर्फ इसी इल्म से ही हासिल होती है। और अगर अहले अरब की तबीयत और ज़ौक़ से दकाइक अरबिया की मारिफत हासिल कर लेते हैं तो उनका ज़ौक़ और तबीयत उलूम में से तो नहीं है। और हमारा ये दावा है कि उलूम में से सिर्फ और सिर्फ यही इल्म है जिसके जरिए एजाज़ कुरान और इस फन के जरिए दकाइक की मारिफत हासिल होती है। दकाइक अरबिया दीगर उलूम की बनिस्बत दीगर दकाइक से अदक है। असल में अरबी के अंदर एक कायदा कुलिया है कि दकाइकुल अरबियती अदक मिन दकाइकिल उलूम, यानी अरबी दकाइक दीगर उलूम के दकाइक से अदक होते हैं। तो चूंकि इस इल्म बलागत से दकाइक अरबिया मालूम होते हैं, लिहाजा ये इल्म खुद भी दीगर उलूम से अदक होगा। वबिही युक्शफु अन वुजूहिल एजाज फी नज़्मिल कुरान अस्तारुहु अजल्लुल उलूमी कदरन, और इसी फन के जरिए उठा दिए जाते हैं वुजूह एजाज से उसके पर्दों को, और इसी फन के जरिए मुनकशिफ किए जाते हैं, खोले जाते हैं वुजूह एजाज से उसके पर्दे। दरहाले के वो वुजूह नज़्म कुरान में है। अजल्लुल उलूम कदरन, सो ये मर्तबा के एतबार से अजल उलूम में से हुआ। लिअन्नल मुराद बिकश्फिल अस्तारी मारिफतु अन्नहु मौजिज़ुन, उनके पर्दों के उठाने से मुराद इस बात की मारिफत हासिल करना है कि कुरान पाक मौजिज़ है, यानी आजिज करने वाला है। लिकौनिही फी आला मरातिबिल बलागति लिश्तिमालिही अला दकाइकी वल असरारी वल खवासिल खारिजती अन तौकिल बशरी, क्योंकि कुरान पाक बलागत के आला मर्तबा पर फाइज है, आला मर्तबा पर है, इसलिए कुरान पाक ऐसी बारीकियों, निकात और खवास पर मुश्तमिल है जो इंसान की ताकत से, इंसान के फहम से
बाहिर है। वहाज़िही वसीलतुन इला तस्दीक़िन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फी जमीई मा जाअ लियक्तफी असरुहु फयुफाज़ु बिस्सआदाति दुनियविय्यति वल उखरविय्यति। और एजाज कुरान की जो मारिफत बंदे को मिलती है, एजाज कुरान की मारिफत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक का वसीला और जरिया है। इन तमाम बातों में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका के इत्तिबा पैरवी की जा सके, ताकि उखरवी और दुनियावी सादतों के साथ कामयाबी हासिल हो। फयुफाज़ु का माना कामयाबी हासिल करना। फयकून मिन अजल्लिल उलूमी लिकौनि मालूमिही मिन अजल्लिल मालूमाति व गायतिही मिन अशरफिल गायाति व जलालतुल इल्म बि जलालतिल मालूमी व गायतिही। सो ये इल्म अजल उलूम से होगा क्योंकि इसका मालूम भी अजल मालूमात और इसकी गायत अशरफ गायात से है। वबिही युक्शफु से शार अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने पहले दावा पर दलील देना चाहते हैं। दावा ये था कि इल्म बलागत अजल उलूम में से है क्योंकि इसी इल्म के जरिए ये गिरा खुलती है कि कुरान पाक मौजूद है और इसका मुकाबला करना और इसकी मिसाल लाना दुनिया की ताकत और बसात में नहीं है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है तो बिसूरतिन मिन मिस्लिह, ये कुफार को चैलेंज किया गया था कि अगर तुम इसके मिसल कोई सूरत कोई आयत लाना चाहते हो तो लेके आओ। तो सुबह कयामत तक कोई बंदा कुरान पाक की मिसल एक आयत भी नहीं ला सकता और ना ही ला सकेगा। इल्म बलागत से कुरान पाक का मौजूद होना ये कैसे मालूम होता है? उसका जवाब यह है कि इल्म बलागत से कुरान का बलागत के आला मरातिब पर होना साबित होता है क्योंकि कुरान पाक ऐसे दकाइक और ऐसे असरार और रमूज पर मुश्तमिल है जो बशर की ताकत से, जो इंसान की ताकत से खारिज और बाहर है। तो जो कलाम ऐसे दकाइक और ऐसे असरार और रमूज पर मुश्तमिल हो वो आला मरातिब बलागत पर होता है, वो बलागत का आला तरीन मर्तबा होता है। तो ये बात वाज़ेह और साबित हुई कि कुरान पाक आला मरातिब बलागत पर है और जो कलाम आला मरातिब बलागत पर हो वो कलाम मौजूद होता है। सो इल्म बलागत से साबित हुआ कि कुरान पाक मौजूद है। वहाज़िही वसीलतुन इला तस्दीक़िन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फी जमीई मा जाअ लियक्तफी असरुहु फयुफाज़ु बिस्सआदाति दुनियविय्यति वल उखरविय्यति। यहाँ से ये बात शार रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमा रहे हैं कि जब कुरान पाक का मौजूद होना साबित हो गया तो ये हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तस्दीक का वसीला बन गया। जब हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक हासिल हो गई तो हम पर उनकी इताअत भी वाजिब है और जब इताअत वाजिब हुई तो हम उस पर अमल करेंगे जो आपने अवामिर और नवाही फरमाए हैं और जब हम उस पर अमल करेंगे तो हमें दुनियावी और उखरवी सआदात और कामयाबियां हासिल होंगी और ये दुनियावी और उखरवी सआदात और कामयाबियां इसकी गायत है और अजल अशिया में से है। तो ये अजल सआदात हमें हासिल हुई आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा पैरवी से, तो आपकी इत्तिबा भी अजल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा हासिल हुई आपकी तस्दीक से, तो आपकी तस्दीक भी अजल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक हासिल हुई कुरान पाक के मौजूद होने से, तो कुरान पाक का मौजूद होना भी अजल हुआ और कुरान का मौजूद होना साबित हुआ इल्म बलागत से, तो इल्म बलागत भी अजल हुआ क्योंकि जिस इल्म का मालूम और गायत अजल हो वो इल्म खुद भी अजल होता है। सो ये बात साबित हो गई कि इल्म बलागत अजल उलूम में से है। लिकौनिही फी आला मरातिबी, शार रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक इख्तिलाफी मसला बयान फरमा रहे हैं। इख्तिलाफी मसला यह है कि आखिर कुरान पाक मौजूद क्यों है। तो याद रखें कि इस सिलसिला में उलमाए किराम के मुख्तलिफ आरा हैं, उनके मुख्तलिफ अकवाल हैं। नंबर एक, कुरान पाक के एजाज का सबब फसाहत अल्फाज और बलागत मानी है। कोई शख्स इसकी मिसाल लाने पर कादर और कुदरत नहीं रखता। कुरान पाक की जो आयात बय्यिनात हैं वो गैब की खबरों पर मुश्तमिल है। कुरान पाक का नज़्म नसर, उसलूब और रिज्ज़ व सजा, इनमें से हर एक से खाली होने के बावजूद जाज़िब कुलूब होना यह भी एक मौजूद होने का सबब है। कुरान पाक का कलाम कदीम होना ही एजाज का सबब है। कुरान पाक हर किस्म के नक्श ऐब से और तमाम शुकूक व शुबहात से पाक है, ये भी मौजूद होने का एक सबब है। शार रहमतुल्लाहि तआला अलैह के यहाँ कुरान पाक का सबब एजाज पहला कौल कि कुरान में आखिरी दर्जा की बलागत है और बेमिसाल बलागत है।
इसलिए दुनिया इसकी मिसाल लाने से कासिर और आजिज है। इसीलिए फरमाया अन तौकिल बशरी लिश्तिमाल ही अलद्दकाइकी से गर्ज शार रहमतुल्लाह तआला अलैह। इस अमर पर दलील देना है कि कुरान पाक में आला दर्जे की बलागत है। तो शार अलैह फरमाते हैं क्योंकि कुरान पाक ऐसे लताइफ और ऐसे निकात पर मुश्तमिल है और मौका महल की ऐसी हसीन कुरान पाक में रियायत की जाती है जिसका लिहाज और बर्ताव मखलूक की ताकत से बाहर है। कोई भी बंदा इन तमाम एतबारात का लिहाज नहीं रख सकता। सो ये दलील है कुरान पाक में आला दर्जे की बलागत मौजूद है। फयकून मिन अजल्लिल उलूम से शार रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने कलाम का हासिल और खुलासा बयान कर रहे हैं। फयकून की जो फा है ये भी तफरीइया है जो नतीजा और अंजाम पर दाखिल हो रही है। सो ये बात वाज़ेह हो गई, साबित हो गई कि एजाज कुरान की मारिफत आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत और तस्दीक का सबब है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तस्दीक दुनिया और आखिरत की तमाम सादतों की कामयाबी और कुनजी है। तो फिर इल्म बलागत तमाम उलूम से बुलंद मर्तबा और बुलंद शान है, क्योंकि किसी भी इल्म और फन के बुलंद मर्तबा या कम मर्तबा होने का मदार उसके मालूम और गायत पर डिपेंडेंट होती है। चूंकि इल्म बलागत का मालूम अजल मालूमात से है, लिहाजा इल्म बलागत भी अजल उलूम से होगा। चूंकि इल्म बलागत की गायत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक है और ये अजल गायात में से है, लिहाजा इल्म बलागत भी अजल उलूम